کا انہیں ذکر کیا تو میں ان کی اطلاع کے لیے عرض کرنا چاہوں گا بشکیک سے جہاز آج انشاءاللہ لے کے پہنچ جائے گا وہ ہمارے دوست وہاں پھنسے ہوئے ہیں ہمارے پاکستانی بچے ہیں اسٹوڈنٹس ہیں ہم نے بالکل ایک واضح فیصلہ کیا ہے اور ہمیں صوبائی حکومتوں سے پہلے کچھ دقت ہو رہی تھی اب انہیں مہربانی فرمائی ہے ہم نے جو کہا ہے کہ جب وہ لوگ آئیں گے کوارنٹین کی لمیٹیشن کی وجہ سے ہم رفتار کو تیز نہیں کر سکتے تھے اب ہم نے کہا ہے وہ سیلف کوارنٹین میں جائیں گے ہم نے وزیر اعظم نے فیصلہ کیا ہے انٹرنیشنل پی آئی اے کو جو انٹرنیشنل فلائٹس ہیں وہ بحال کر دی ہیں اور اس کو بنیادی رسپانسبلٹی دی ہے کہ جو لیبر پڑی ہے کلاس سعودی عربیہ میں یو اے ای میں یا باہر وہ ترجیح بنیادوں پر پہلے لائی جائے گی تو انشاءاللہ ان قریب سعودی عربیہ یو اے ای یا دیگر جو لیبر مزدور طبقہ ہے وہ انشاءاللہ واپس آ جائے گا میں آپ کی اطلاع کے لیے کرنا چاہتا ہوں جناب والا میں یہاں حاضر ہوا ہوں سینیٹر مشاہد حسین صاحب جو چیئرمین ہیں فارن ریلیشنز کمیٹی کے انہوں نے ایک نقطہ اٹھایا اور میں نے مناسب سمجھا کہ اگر کوئی غلط فہمی ہے تو اس غلط فہمی کو دور کر لیا جائے انہوں نے اپنی تقریر میں فرمایا کہ پاکستان نے ہندوستان کو واک اوور دے دیا ہے کہ وہ سیکیورٹی کونسل کا نان پرماننٹ ممبر بن گیا ہے میں ان کی خدمت میں بصد احترام یہ کہنا چاہتا ہوں کاش انہوں نے یہ تقریر کرنے سے پہلے مجھ سے رابطہ کر لیا ہوتا وضاحت مانگ لی ہوتی تو شاید ان کی تشویش میں دور کر لیتا لیکن کیونکہ انہوں نے اٹھا دیا ہے جواب دینا میرا فرض ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں پروسیس کو سمجھنا ہے آپ ٹویٹ کر دیں سوشل میڈیا پہ لوگ لکھتے ہیں they do not understand the پروسیس یہ ہے کہ 15 رکنی سیکیورٹی کونسل ہے 5 پرماننٹ ہیں 10 جو ہیں وہ نان پرماننٹ ممبرز ہوتے ہیں وہ روٹیشن میں ہر 2 سال بعد وہ ہر سال الیکشن ہوتا ہے اور 2 سال کے لیے الیکشن ہوتا ہے اس میں پاکستان بھی حصہ لیتا رہا ہے اور ہندوستان بھی حصہ لیتا رہا ہے اس وقت کا ریکارڈ یہ ہے کہ 7 مرتبہ ہندوستان سیکیورٹی کونسل کا ممبر بن چکا ہے اور 7 مرتبہ پاکستان بھی سیکیورٹی کونسل کا ممبر بن چکا ہے اس دفعہ ہندوستان نے سیکیورٹی کونسل کا انتخاب لڑنے کا فیصلہ کب کیا میں ان کی اطلاع کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں سن 2013 سے وہ اپنی کیمپین کر رہے ہیں سن 2013 میں نہ پی ٹی آئی کی حکومت تھی نہ میں وزیر خارجہ تھا اگر ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں تو 2013 میں حکومت کس جماعت کی تھی اور وزیر خارجہ کون تھا نام میں نہیں لینا چاہتا لیکن وہ بہت سمجھدار ہیں میں بہت احترام کرتا ہوں وہ اس کا میرا اشارہ سمجھ گئے اگر واک اوور کسی نے دیا ہوگا تو کسی اور نے دیا ہوگا ہم نے نہیں دیا پر میں ان پہ بھی بات نہیں کروں گا میں کسی پہ الزام نہیں لگاؤں گا because people have to understand the process what is the process sir process یہ ہے کہ جب آپ سیکیورٹی کونسل کا نان پرماننٹ ممبر بننے کی خواہش کرتے ہیں تو یہ ایک دن کا فیصلہ نہیں آپ کو کئی سال پہلے منصوبہ بندی کرنی ہے ریکارڈ بتاتا ہے کہ حکومتوں نے 5 سے 15 سال پہلے اس کے لیے پلاننگ کرتے ہیں مثال کے طور پر سن 2025 اور 26 کے لیے پاکستان سیکیورٹی کونسل کی ممبر کا خواہش مند ہے سیٹ کا اس کے لیے کیمپین ہم نے آج سے شروع کر رکھی ہے 25-26 میں ہونا ہے بیکاز آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ نان پرماننٹ ممبرز کی الیکشن کا پروسیس کیا ہے ریجنل ہوتا ہے آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے ریجن کی سچویشن کیا ہے اور آپ نے اس ریجنز کو آگے لے کے چلنا پڑتا ہے ریجن کے اندر جب آپ ایک اختلاف پیدا کرتے ہیں تو پھر آپ کے ووٹ ڈیوائیڈ ہوتے ہیں اور اس سے آپ کی کیونکہ صرف ریجن تک ہمارا ہے ایشیا پیسیفک گروپ ہندوستان اور ہم دونوں اس گروپ میں آتے ہیں اگر ہم اپنے ریجن میں دو بدو ہو جائیں تو ہمارے ووٹ تقسیم ہوں گے اور ہمارے چانسز جو آگے جیتنے کے ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش ہے 1970 میں جب سے پاکستان آزاد ہوا اور آج تک صرف ایک مرتبہ
दो बदू इलेक्शन हुआ हिंदुस्तान और पाकिस्तान का, और आपकी इत्तला के लिए जनाब चेयरमैन हाउस की इत्तला के लिए 8 राउंड्स हुए, 8 राउंड्स, पहला राउंड फैसला नहीं, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, 8वें राउंड में फैसला हुआ और पाकिस्तान जीता। उसके बाद एक अंडरस्टैंडिंग, एक डिप्लोमेटिक अंडरस्टैंडिंग हुई कि हमें ग्रुप के अंदर तकसीम से न उनको फायदा है न हमें फायदा है। तो अब एक अंडरस्टैंडिंग है कि वो जब अपना केस पेश करते हैं तो कोई और चैलेंज करे, हम किसी को रोकते नहीं है, लेकिन हमने अपने आइंदा के इलेक्शन के चांसेस को देखना है। आज का फैसला हमारे कल के फैसलों पर असरअंदाज हो सकता है। ये जनाब चेयरमैन, ये स्ट्रेटेजिक फैसले होते हैं, इमोशनल नहीं होते, ये जज्बाती फैसले नहीं होते, कौमी मफाद को सामने रख के करना पड़ता है। अब हुआ ये कि हिंदुस्तान ने जब ये अपनी ख्वाहिश जाहिर की तो उन्होंने इलेक्शन किया। ख्वाहिश जाहिर की तो एशिया पैसिफिक ग्रुप में दे वर द ओनली कैंडिडेट। जब अकेला कैंडिडेट हो और एक ही सीट हो और एक ही कैंडिडेट हो, नतीजा क्या निकलेगा? वाज़ेह है, नतीजा यही निकलेगा जो निकला। अब उसको रोकने का तरीका क्या था? रोकने का तरीका यह था कि कंटेस्ट किया जाता। कंटेस्ट कौन करता? पाकिस्तान करता। उसे पाकिस्तान को हासिल क्या होना था? वो 8-9 साल से अपने वोट पाबंद कर चुके थे, लोगों से आबादगी हासिल कर चुके थे। इस 11th आवर में 9-10 महीने पहले पाकिस्तान बेवकूफाना तरीके से कूद पड़ता, हमें हासिल भी कुछ नहीं होना था। एक डिप्लोमेटिक नॉर्म जो है वो भी डिस्टर्ब होता और हमारे 25-26 के जो इम्कानात है, जिसका 24 पे इलेक्शन होना है, वो भी मुतासिर होता। नाउ दानिस्त, अक्लमंदी और फहम फरासत ये कहती थी और हमने वो किया जो पाकिस्तान के मफाद में था और इंशाअल्लाह करेंगे। अब सिक्योरिटी काउंसिल में अगर मैंने कहा कि द हेवंस वुड फॉल अगर इंडिया मेंबर बन जाता है, 7 मरतबा पहले बन गए, क्या 7 मरतबा जब वो सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर रहे तो कश्मीर पे अक़वाम मुत्तहिदा का मौक़िफ़ तब्दील करने में वो कामयाब हुए? नहीं हुए। आज भी अक़वाम मुत्तहिदा उसी असूली मौक़िफ़ पर खड़ी है जिस पर वो पहले थी। आज भी मकबूजा कश्मीर को मुतनाज़ा इलाका समझा जाता है। आज भी सलामती काउंसिल की जो करारदातें हैं उनको फाइक समझा जाता है। उनकी अहमियत से, उनकी अफादियत से, उनकी लीगैलिटी को कोई क्वेश्चन नहीं करता। अगर करता होता तो अभी रिसेंटली 45 साल के बाद जो सिक्योरिटी काउंसिल में कश्मीर का मसला जेर बहस आया वो ना आता। तो हमें समझने की जरूरत है कि ऐसी घबराने की जरूरत नहीं है। अब अगर उनके वहां वो बैठे हैं तो हमारे भी दोस्त हैं और उनके इंटरेस्ट वो अपने बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो हम उसको ब्लॉक भी कर सकते हैं। हमें अंदाजा है, हमें पता है कैसे करना है। नंबर 1। नंबर 2, हमारा काम है हिंदुस्तान को एक्सपोज करना। हम करेंगे, हमने कोई रियायत नहीं की, जानते हुए जनाब चेयरमैन के एक फोरगॉन कंक्लूजन है और हिंदुस्तान इलेक्शन जीतेगा। सीक्रेट बैलेट होता है और आप सब समझते हैं कि सीक्रेट बैलेट में आप इजहार नहीं करते कि मैंने वोट किसको दिया, आप खामोश रहते हैं। लेकिन एब्सटेन भी कर सकते थे। हमने एब्सटेन नहीं किया, हमने भारत के खिलाफ वोट इस्तेमाल किया और हमने वोट न सिर्फ इस्तेमाल किया बरमला कहा कि हम सीक्रेसी को हट के हम कह रहे हैं कि हमने आपके खिलाफ वोट इस्तेमाल किया है। ये क्यों किया हमने? इसलिए कि बताएं कि भारत ने एक नॉर्म को तोड़ा है। भारत ने 5 अगस्त के बाद जो इंटरनेशनल लॉ है उसको वायलेट किया है। भारत ने यूएन चार्टर को वायलेट किया है। भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल को वायलेट किया है।
भारत जो है ह्यूमन राइट्स काउंसिल की इतला के मुताबिक जो ह्यूमन राइट्स कमिश्नर है वो 2 रिपोर्टें आ चुकी है, 18, 19, और हम कोशिश कर रहे हैं 20वीं भी आए, सन 2020 में 3री भी आए। उन हवालों से भारत को हमने एक्सपोज किया है और करेंगे, ओआईसी में किया है। और आज पाकिस्तान अकेला नहीं है, आज भारत की कैफियत जनाब चेयरमैन ये है कि 5 अगस्त का जो फैसला है जिसको पाकिस्तान की कौम ने और आप सब ने, गवर्नमेंट ऑपोजिशन सब ने मिलकर मुत्तफिका करारदाद से मुस्तरद किया, आज चीन भी उसको मुस्तरद कर चुका है। और चीन कह रहा है कि 5 अगस्त का जो आपका भारत का फैसला है पाकिस्तान को तो कबूल नहीं था, मुझे भी कबूल नहीं है। और उसका जिंदा मिसाल जनाब चेयरमैन आज लद्दाख में आज क्या हो रहा है, आज हिंदुस्तान की जो लाशें उठ रही हैं जवानों की और सोल्जर्स की, कैसे हो रहा है। सो देयर इज ए ड्रामेटिक शिफ्ट इन द रीजन। आज चीन खुलकर भारत के खिलाफ मैदान में उतरा है। 50 सालों के बाद घूसे नहीं हुए, पीपल हैव लॉस्ट लाइव्स। खूनी ये झगड़ा अब खूनी शक्ल अख्तियार कर गया है। और चीन अपने मौके पे, कल मेरी चीन के वजीर खारजा से गुफ्तगू हो रही थी ऑन BRI वर्चुअल कॉन्फ्रेंस, सो आई नो कि चीन की क्या सूरत हाल है, चीन की क्या सोच है। आज नेपाल जो समझा जाता था बिल्कुल उनके शिकंजे में है, आज नेपाल कह रहा है ये इलाके जो हैं भारत तुम्हारे नहीं है, हमारे हैं। आज नेपाल उसके खिलाफ है, आज चीन उसके आवाज बोल रहा है, आज पाकिस्तान उनको एतराज कर रहा है, आज श्रीलंका के एतराजात हैं। और आज आपके इल्म में होना चाहिए कि भूटान और बहुत से लोग हैं, वो कैफियत नहीं है। आज अफगानिस्तान भी सोचता है कि वहां अमन के मसले में और रिकंसिलिएशन में रखना अंदाजी कर रहा है। भारत जनाब चेयरमैन आइसोलेट हो रहा है, भारत दबाव में आ चुका है। भारत कोरोना के बाद उसका जो माली दिवालियापन के करीब है, और क्योंकि उनकी इंटरनेशनल एक्सपोजर हमसे कहीं ज्यादा था, दे वर मोर कनेक्टेड टू द इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट्स। ऑब्वियसली हमसे बड़ा मुल्क है, हमसे बड़ी मईशत है और हमसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। अब इस सब चीजों को सामने रखते हुए मिसहैंडलिंग, इकोनॉमिक कलैप्स, डिप्लोमेटिक आइसोलेशन, भारत बिल्कुल, मैं कहना चाहता हूं, कोई ना कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है। लेट द नेशन बी रेडी एंड लेट द इंडियंस अंडरस्टैंड, लेट नरेंद्र मोदी अंडरस्टैंड, जयशंकर, आई एम सेइंग इट ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, बीवेयर, बीवेयर। अगर आपने कोई हम पर आंख उठाई या हाथ उठाया तो फरवरी भी याद रखना और फौरी जवाब के लिए भी तैयार रहना। ये कौम तुम्हारी गीदड़ भपकियों में नहीं आएगी। मसला कश्मीर पर और पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, पाकिस्तान की सालमियत और पाकिस्तान की आन पर हम कल भी इकट्ठे थे, आज भी इकट्ठे हैं। तो मैं चाहता कि मुशाहिद भाई होते तो मैं वजाहत कर लेता, और अगर मजीद वजाहत चाहिए तो फॉरेन रिलेशंस कमेटी का इजलास बुला ले, मैं कई और चीजें उनके सामने पेश कर दूंगा। थैंक यू सर। थैंक यू जी। सेनेटर गौस नियाजी प्लीज।